आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। मेहरबान है, यूं लगाने मुते सब मेहरबान है। अनुराग में सूझता कुछ नहीं, नेह अनुराग में सूझता कुछ नहीं। नया सफर है जहां हर कल्पना को पंख मिलेंगे। As we inaugurate this space, let the flame of creativity guide us, just as we wish the light of the lamp to illuminate our path in all our endeavors. जोरदार तालियों से आभार व्यक्त करें हमारे सीएम सर, आतिशी मैम एंड डिपार्टमेंट के सभी सीनियर ऑफिशियल्स का, इंक्लूडिंग द RDEs, the DDEs, the principals and of course my lovely friends who are present in this auditorium. आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। Now, get ready to be amazed by the captivating diversity dance, showcasing the strength of unity and togetherness. चलिए जोरदार तालियों के साथ हम छात्रों का मनोबल बढ़ाएं और इस अद्भुत और रोमांचक नृत्य का आनंद लेते हैं।
মাতানো মহুয়ায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায় ফাগুনেরও মোহনায় ফাগুনেরও মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায় ফাগুনেরও মোহনায় ও মোর মন হারিয়ে যায় মোর মন হারিয়ে যায় কন্যের তোর ভাবনা ঝিলমিলিয়ে যায় রে ঝিলমিলিয়ে যায় ও মোর মন হারিয়ে যায় মোর মন হারিয়ে যায় কন্যের তোর ভাবনা ঝিলমিলিয়ে যায় রে ঝিলমিলিয়ে যায় কোন চেনা দেশের তরে তোর সাথে এইতে পান্তয় মোর মনের প্রজাপতি নাচি নাচি ঘুরি ঘুরি উড়ি উড়ি উড়ে যায় মন হারানোর ঠিকানায় ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায় ফাগুনের মোহনায় I've come so far from where I began. Miss the sound of the waves, the breeze on my skin. Wish that I could be back in my homeland, singing da 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 da. Show me the road and I'll be right there. I'd do anything to feel the wind in my hair. I'd go far as it takes, and I won't even care. I'll sing da 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 da. കുട്ടനാടൻ പുഞ്ചയിലെ ദിത്തേ തകതേതേതോ കൊച്ചുവെണ്ണെ കുയിലാലെ ദിത്തേ താരരേതേ കൊട്ടു വേണം കുഴൽ വേണം കുരവ വേണം കൊട്ടു വേണം കുഴൽ വേണം കുരവ വേണം ഓ ദിത്തേ താര ദിത്തേ ദിത്തേ തകതേതേതോ 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 तेरा नाम है साचा वतन वतन मेरे आबाद रहे तू वतन वतन मेरे आबाद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू है वतन मेरे वतन है वतन मेरे वतन और कड़ी दिनों की मेहनत का नतीजा था ये प्रदर्शन। आप सभी की तालियों के सहयोग से हम सब हर्ष, ऊर्जा और उत्साह के साथ कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। Aplaudan fuerte para el increíble baile flamenco que está a punto de cautivar el escenario. El flamenco se caracteriza por los movimientos de pies y expresión emotiva. Prepárense para ser transportados al mundo de flamenco, sus propios ojos. Prepare to be entranced by the graceful movements and vibrant energy of students as they showcase a mesmerizing flamenco dance. छात्रों द्वारा ये फ्लेमेंको नृत्य आपको एक अद्भुत अनुभव में ले जाएगा। जोरदार तालियों से उनको प्रोत्साहित करें।
वाह, क्या मनमोहक प्रदर्शन था. A resplendent morning embraces us today as we all gather here for expressing our gratitude for this magnificent and well-equipped auditorium. I request the dignitaries, Honorable CM Sir Shri Arvind Kejriwal ji, Honorable Education Minister Ms. Atishi Ma'am, Honorable MLA Prahlad Sahani Sir, Secretary of Education Mr. Ashok Kumar Sir, Director of Education Mr. Himanshu Gupta Sir, to take their place on the stage. Requesting all the dignitaries who've graced the occasion to kindly take their seats on the stage so that we can continue with the proceedings for the day. We have our Chief Minister, Mr. Arvind Kejriwal Sir, Education Minister, Madam Atishi Ma'am, and all other dignitaries on the stage. Our students will present a token of gratitude to our respected Chief Minister Sir, Shri Arvind Kejriwal ji. To commence with the events, we have welcoming of the chief guests, our Honorable Chief Guest, Chief Minister Sir, with a sapling, and customary to all occasions, we welcome all our dignitaries who grace the occasion. Thank you so much, sir, for gracing the occasion. Welcome to our school, sir. We would like to welcome our Education Minister, Ms. Atishi Ma'am, with a sapling. Our students are here to welcome Honorable MLA, Mr. Prahlad Sahani, sir. Welcoming learned Secretary of Education, Mr. Ashok Kumar, sir, with a sapling. We also have Director of Education, Mr. Himanshu Gupta, sir, with us. So welcome to the school. Welcoming Municipal Councillor, Mr. Vikas Tank ji, with a sapling. Let's have a huge round of applause. As Nelson Mandela rightly said, education is the only weapon which you can use to transform the world. I would like to call upon Honorable Secretary of Education, Mr. Ashok Kumar, sir, to come upon the stage and enlighten us with his words of wisdom. Please welcome sir with a huge round of applause. नमस्कार। आज के समारोह के मुख्य अतिथि ऑनरेबल सीएम सर केजरीवाल साहब, मिनिस्टर एजुकेशन मैडम अतीशी जी, एमएलए प्रहलाद सिंह साहनी साहब, विकास टाक जी, लोकल काउंसलर, डायरेक्टर एजुकेशन हिमांशु गुप्ता जी, शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारीगण, पेरेंट्स, बच्चों के जो यहाँ आए हुए हैं, और प्यारे बच्चों, सभी का आज के इस समारोह में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। सर, मैं यह बताना चाहूँगा कि इस स्कूल में लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज़, कंप्यूटर साइंस लैब और हेल्थ क्लिनिक, ये सारी सुविधाएं पहले से ही मौजूद हैं। बस एक कमी थी ऑडिटोरियम की, वो आज आपके चरण कमलों से पूरी कर ली गई है। और यह ऑडिटोरियम सभी आधुनिकतम सुविधाओं के साथ लैस है,
जिसका फ़ायदा बच्चे पूरा उठाएंगे। और क्योंकि इस स्कूल में 21st सेंचुरी हाई एक्सीलेंस की क्लासेस हैं, उनके सब्जेक्ट है, उसमें ऑडियो विजुअल आर्ट्स है, तो उसका स्पेशल बेनिफिट यहाँ पढ़ने वाले सभी बच्चों को मिलेगा। तथा साथ ही साथ सिर्फ इसी स्कूल तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा ये ऑडिटोरियम, एरिया में जितने और भी स्कूल्स हैं उनको भी अगर किसी चीज़ की ऑडिटोरियम रिलेटेड सुविधा चाहिएगी तो उसके लिए भी ऑडिटोरियम की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। और ऑडिटोरियम की जो कैपेसिटी है और सुविधाएं हैं यहाँ पे, उसको देखते हुए शिक्षा विभाग में भी जब ट्रेनिंग वगैरह या और भी कुछ काम होंगे तो उसके लिए भी ये सुविधा हम उपलब्ध कराएंगे अपने टीचर्स को। और इसी से मैं उम्मीद करता हूं कि जो स्कूल मैनेजमेंट है बच्चों का पूरा ध्यान रखेंगे और जो भी सुविधाएं इस ऑडिटोरियम में है वो भरपूर उपयोग किया जाएगा और बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर करा के उनकी पढ़ाई कराई जाएगी। इसी उम्मीद के साथ मेरी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और एक बार पुनः इस समारोह में आने के लिए सभी का हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। Thank you, sir, for your words of wisdom. With a vision so enlightening to make the students shine bright with knowledge as their might, I would like to invite the Honorable Minister of Education, Ms. Atishi Ma'am, to address the event with the words of wisdom. Let's have a huge round of applause for her. यहाँ स्टेज पर बैठे दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, यहाँ एरिया एमएलए प्रहलाद सिंह साहनी जी, सेक्रेटरी एजुकेशन, डायरेक्टर एजुकेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी ऑफिशियल्स, पेरेंट्स और हमारे एजुकेशन सिस्टम के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से हमारे प्यारे बच्चों, आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद इस शानदार ऑडिटोरियम के आज के उद्घाटन के लिए। हम अक्सर कई बार जब स्कूल के बिल्डिंग के लिए उद्घाटन के लिए जाते हैं तो ये बात तो अक्सर ध्यान में आती है कि शायद आज हमारे सरकारी स्कूल की बिल्डिंग्स ने प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन सर आज इस ऑडिटोरियम को देख के लगता है कि आज हमारे सरकारी स्कूल की बिल्डिंग्स ने बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सेस को भी पीछे छोड़ दिया है। इतना शानदार यहाँ पे हमारा स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस राजनिवास मार्ग में ये ऑडिटोरियम बना है। मैं खुद दिल्ली से मैंने अपनी स्कूलिंग करी है, दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में मैं पढ़ती थी और मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि दिल्ली के किसी भी प्राइवेट स्कूल में ऐसा मल्टीप्लेक्सेस को पीछे छोड़ने वाला ऑडिटोरियम आपको नहीं मिलेगा जो आज हमारे स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस राजनिवास मार्ग में यहाँ पे जिसकी शुरुआत हुई है। 8 साल पहले जब हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे तो दिल्ली में भी सरकारी स्कूलों का वही हाल होता था जो देश भर में होता था। सरकारी स्कूल के नाम पे जो इमेज आती है कि टूटे हुए डेस्क, बच्चे दरी पे बैठे हुए हैं, खिड़कियां टूटी हुई हैं, लाइटें टूटी हुई हैं, पीने को पानी नहीं है, क्लासरूम में टीचर नहीं है, ये इमेज इसलिए बनी है क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम की ये अनफॉर्चुनेट सच्चाई रही है। लेकिन 2015 से अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने जो दिल्ली के बच्चों के लिए सपना देखा, आज वो सपना दिल्ली के हर कोने में दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए साकार हो रहा है कि ऐसे शानदार स्कूल हर फैसिलिटी के साथ हमारे बच्चों को दिए जा रहे हैं। तो चाहे स्कूल की बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे जिस तरह हमारी टीचर्स की ट्रेनिंग में इन्वेस्ट किया गया हो, हमारे प्रिंसिपल्स को देश विदेश में बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में भेजा गया हो, चाहे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो, चाहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे फिनलैंड के स्कूलों को देखने के लिए भेजा, चाहे सिंगापुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में भेजा। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने हमारे बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन फिर भी कई सालों से मैं देखती थी कि स्कूलों में बहुत सुधार आया, रिजल्ट्स में सुधार आया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे स्कूलों के बच्चों, सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, कभी लगता था कि उनमें कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी रहती है, कि उनको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं शायद प्राइवेट स्कूल हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो कज़न्स हैं जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, शायद उनको हमसे कुछ ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है।
लेकिन आज मैं यहाँ पे बच्चों की, चाहे वो कल्चरल परफॉर्मेंस देख के, या जिस ऑडिटोरियम में आज वो बैठे हुए हैं, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ जो हमारे ही स्टूडेंट्स ने आज यहाँ पे कंपेयरिंग करी है, मैं आज ये बात भी इस दावे के साथ कह सकती हूँ कि कॉन्फिडेंस में भी आज हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों ने प्राइवेट स्कूल के बच्चों को पीछे छोड़ दिया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो बच्चे आज यहाँ पे चाहे कंपेयर कर रहे हैं, कल्चरल परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हमारी ऑडियंस में बैठे हुए हैं, आज हमें 14-15 साल के यंग बच्चों की तरह, टीनेजर्स की तरह दिख रहे हैं, पर आने वाले 10-15 सालों में इन्हीं बच्चों का नाम हम देश की हेडलाइंस में देखेंगे, देश के लीडर्स के माध्यम से देखेंगे, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे साइंस में हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस देश को आगे लेके जाने में इन बच्चों का, आप सभी बच्चों का एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम श्योर इस फैसिलिटी को आप भी और आसपास के स्कूलों के बच्चे भी बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ करेंगे। और मैं हमारे मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने शुरू से शिक्षा को इस सरकार की पहली प्राथमिकता बनाया है, शिक्षा में हमेशा इतना बजट दिया है और खुद भी हर शिक्षा से रिलेटेड के काम के लिए इतना समय और हम सबको प्रोत्साहन दिया है कि आज हम यहाँ तक पहुँच पाए। थैंक यू। हमें हमेशा प्रेरित करने के लिए धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स एंड इनसाइट्स। सौभाग्यशाली आज का यह दिवस। कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं लाती, कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं लाती, वह तो केवल संतोष लाती है। ऐसी ही सकारात्मक सोच रखने वाले परम आदरणीय दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा, ताकि वह अपने प्रेरणादायक वाणी से हम सभी का मार्गदर्शन करें। वेलकम हिम अपॉन द स्टेज विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। मंच पे मौजूद दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी जी, इस एरिया के एमएलए सानी साहब, दिल्ली के शिक्षा सचिव अशोक कुमार जी, डायरेक्टर एजुकेशन हिमांशु जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, प्रिंसिपल, टीचर्स, पेरेंट्स और प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले जिन बच्चों ने अभी शानदार परफॉर्मेंस किया, कल्चरल परफॉर्मेंस, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। मैं कई स्कूलों में जाता हूँ, प्राइवेट स्कूल्स में भी जाता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जाता हूँ और बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में भी जाते हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी बेस्ट प्राइवेट स्कूल के परफॉर्मेंस से कम नहीं था आज हमारे बच्चों का परफॉर्मेंस। आप सब लोग जानते हैं कि शिक्षा हमारी सरकार का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी सेक्टर है और ये हम बिलीव करते हैं, हमारी आइडियोलॉजी का हिस्सा है कि बिना शिक्षा के किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता। दुर्भाग्यवश पिछले 75 साल के अंदर हमारे देश में दो किस्म की शिक्षा प्रणाली शुरू की गई। जिन लोगों के पास पैसे हैं उनके लिए प्राइवेट स्कूल हुए और जिन लोगों के पास पैसे नहीं है वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजने पे मजबूर हुए। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल हमेशा खराब होते थे। आज़ादी के बाद आप 15, 20, 25 साल का सफ़र उठा के देखें, उस वक्त के जितने बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े चाहे पॉलिटिशियंस कह लीजिए, चाहे बड़े बड़े आईएएस अफसर कह लीजिए, चाहे पुलिस अफसर कह लीजिए, सब सरकारी स्कूलों से आया करते थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो देश के अंदर गिने चुने प्राइवेट स्कूल होते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ 75 साल के अंदर कि धीरे 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 सरकारी स्कूल खराब होते गए, प्राइवेट स्कूल इतने बढ़ गए कि अब एक आम आदमी जिसके पास पैसा है, हर आदमी कोशिश ये करता था कि भाई 2 पैसे कमा के, 2 पैसे बचा के, एक टाइम की रोटी कम खा के अपने बच्चों को मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊं, चाहे बेकार से बेकार प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहते थे। और धीरे धीरे सरकारी स्कूलों का जो पतन है वो इतना तेजी से होता गया कि जब हमारी सरकार बनी, मेरे को याद है उस टाइम पिछले वाली सरकारों में ये चलता था कि
10 स्कूल इस कंपनी को दे दो, CSR में 10 स्कूल उस कंपनी को दे दो, इस स्कूल की जमीन को कमर्शलाइज कर लो, अजीब अजीब किस्म के आइडियाज होते थे। तो पूरे देश के अंदर एक स्कूलों के और एजुकेशन के प्राइवेटाइजेशन का माहौल चल रहा था। जिसका पास पैसा है उसे शिक्षा मिलेगी, जिसके पास पैसा नहीं है उसे शिक्षा नहीं मिलेगी। अगर किसी देश के अंदर ये माहौल होगा कि पैसे वाले को शिक्षा मिलेगी और गरीब को शिक्षा नहीं मिलेगी, तो फिर तो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे देश के अंदर इतने सारे गरीब हैं, इतने लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो कहां से पैसे लाके इतनी महंगी शिक्षा को अफोर्ड करेंगे? कि क्वालिटी एजुकेशन अगर आपको चाहिए तो पैसे देने पड़ेंगे, और पैसे तो है नहीं लोगों के पास। इसे हमने बदला है पिछले 8 साल के अंदर, इसे हमने बदला है। पिछले 8 साल के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन सेक्टर का हुआ है हर क्षेत्र के अंदर, जैसा भी आतिशी जी ने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पहले जो बच्चे जाया करते थे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी होती थी। अक्सर ये देखा गया था कि किसी घर के अंदर एक लड़की है और एक लड़का है, कोशिश ये करते थे लड़के को प्राइवेट स्कूल में डलवा देते थे, लड़की को गवर्नमेंट स्कूल में डलवा देते थे। कई बार देखने में आया कि मैं पहले एनजीओ में काम करता था, पॉलिटिक्स में आने के पहले दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में काम किया करता था। वहाँ कई बार देखते थे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चे को भेजा, पढ़ाई होती नहीं थी, साल 2 साल के बाद उसको निकाल लेते थे कि टाइम खराब कर रहा है, चलो काम में हाथ तो बटाएगा, 2 पैसे कमा के लाएगा। तो ड्रॉप आउट रेट बहुत हुआ करता था। अब ये सब बंद हो गया है। अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर लगभग 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं, और जब हम इनके पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जब बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आज सरकारी स्कूलों के बच्चों के अंदर प्राइवेट स्कूल के बच्चों से ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र आता है। वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आज मेरे को याद है एजुकेशन के ऊपर ये लोग फिल्म बना रहे थे, जब हमारी नई नई सरकार बनी थी तो सरकारी स्कूलों में जाते थे, तो एक बच्चे से पूछा, हम लोग अक्सर कहते हैं ना बच्चे देश का भविष्य होते हैं, तो एक बच्चे से जब पूछा कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, तो वो बच्चा कहता है जी वो प्राइवेट वाले होते हैं, भविष्य हम नहीं होते, सरकारी स्कूल के बच्चे देश का भविष्य नहीं होते। 5 साल के बाद वही बच्चा दोबारा जब मिला तो उसने कहा जी हमारा पूरा स्कूल बदल गया, अब हम भी इस देश का भविष्य हैं जैसे प्राइवेट वाले होते इस देश का भविष्य। जैसा आतिशी जी ने बताया, ये जो ऑडिटोरियम आज देख रहे हैं, इस ऑडिटोरियम के बहुत मायने हैं। ये ऑडिटोरियम केवल एक 4 दीवारी नहीं है, ये इस किस्म का ऑडिटोरियम आपको दिल्ली के बेस्ट से बेस्ट स्कूलों में भी नहीं मिलेगा। तो आज सरकारी स्कूलों के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है वो बेस्ट से बेस्ट प्राइवेट स्कूल के अंदर भी अवेलेबल नहीं है। जो आज हमारे बच्चों को जो सुविधाएं आज सरकारी स्कूल में मिल रही हैं वो बेस्ट स्कूल के अंदर भी नहीं मिल रही हैं। ये बताइए, पांच 7 साल के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन, इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी बिल्डिंग्स, पूरी कंप्यूटर लैब बन गई है, नई मॉडर्न लेबोरेटरीज बन गई हैं, लाइब्रेरी बन गई है, और आज ये ऑडिटोरियम बन गया। ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है ये बहुत सकारात्मक है। जिस तरह से सरकारी स्कूलों के अंदर टीचर्स की ट्रेनिंग की जा रही है, प्रिंसिपल्स को अब्रॉड भेजा जा रहा है, यूएस से भेजा जा रहा है, कनाडा भेजा जा रहा है, यूरोप भेजा जा रहा है ट्रेनिंग के लिए, सिंगापुर भेजा जा रहा है ट्रेनिंग के लिए, जिस तरह से टीचर्स को आईएम्स में भेजा जा रहा है ट्रेनिंग के लिए, मुझे नहीं लगता कोई भी प्राइवेट स्कूल इतना पैसा खर्च करके अपने टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को इस किस्म की ट्रेनिंग देता है। अभी हम देख रहे थे एक बच्ची यहाँ पे जब अब अनाउंस कर रही थी, स्पेनिश में कर रही थी। कितने स्कूल हैं प्राइवेट स्कूल दिल्ली के अंदर? दिल्ली में तो बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स हैं पूरे देश के। कितने प्राइवेट स्कूल हैं जो फॉरेन लैंग्वेजेस अपने बच्चों को सिखाते हैं? मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा स्कूल हैं। तो अब सरकारी स्कूल, हमारे दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं वो देश के गिने हुए बेस्ट स्कूल्स की कैटेगरी में अब आते हैं। जो जिस किस्म की सुविधाएं आप लोगों को मिलती हैं, ऐसी सुविधाएं मुझे नहीं लगता कहीं भी मिलती हैं। और अब यही ट्रांसफॉर्मेशन का सिलसिला हमने पंजाब में शुरू किया। पंजाब में भी हमारी सरकार बन गई है। तो अभी अभी मैं पहला स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन मैं अमृतसर में करके आया था थोड़े दिन पहले। पंजाब में 20,000 सरकारी स्कूल हैं, यहाँ पे तो 1000 के करीब हैं। पंजाब में 20,000 सरकारी स्कूल हैं।
और सारे सरकारी स्कूलों के अंदर एक साथ कुछ ना कुछ काम शुरू हो गया है। बहुत बुरा हाल है वहाँ भी, जैसे पहले दिल्ली में होता था वहाँ भी शुरू हो गया है। बिकॉज हमारी आइडियोलॉजी है कि देश को अगर हमें बदलना है तो हम 4 लोग जो बैठे हैं स्टेज पे हम नहीं बदल सकते, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। देश को तो आप ही लोग बदलोगे, और आप लोगों को सशक्त करने के लिए, आप लोगों को एम्पावर करने के लिए शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। तो जो देश अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता वो तरक्की नहीं कर सकता। जो काम 75 साल में होना चाहिए था वो अब होने लगा है, ऊपर वाले का शुक्र है अब तो होने लगा है। और मैं समझता हूँ कि ये जो शिक्षा को ठीक करने का सिलसिला है धीरे धीरे तेजी से फैलेगा। अब सब लोग, बाकी सरकारों को भी लगने लगा है कि शिक्षा को बदलना चाहिए। अब कोई सरकार ये नहीं कह सकती, कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि ये हो नहीं सकता। पहले सरकारें कहती थी यार सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकते, सरकार, गवर्नमेंट कैन नॉट रन स्कूल्स। हमने दिखा दिया गवर्नमेंट कैन रन स्कूल्स, और हमने ये भी दिखा दिया कि जो सरकार स्कूल नहीं चला सकती वो सरकार क्या चलाएगी फिर। जिस सरकार से स्कूल नहीं चलते वो सरकार क्या चलाएगी फिर। स्कूल चलाना, स्वास्थ्य सेवाएं देना, अच्छा इलाज करना, ये तो बेसिक जिम्मेदारी है किसी भी जिम्मेदार सरकार की। नहीं तो हम टैक्स किस बात का देते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स देते हैं, किस चीज़ का टैक्स देते हैं? इसीलिए तो देते हैं कि हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी बिजली मिलेगी, अच्छा पानी मिलेगा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। हर चीज़ को प्राइवेट सेक्टर को दे दोगे तो फिर एक दिन सरकार को भी दे दो प्राइवेट सेक्टर। तो मुझे बेहद खुशी आज आपका ये ऑडिटोरियम देख के, और स्कूल के बारे में भी मैंने आने से पहले सारा पता किया था। बहुत शानदार स्कूल आप लोगों का हो गया है। मैं आप सभी बच्चों को बधाई देता हूँ, आप इतने अच्छे स्कूल से पढ़ रहे हैं। सभी पेरेंट्स को बधाई देता हूँ कि आपके बच्चे इतने अच्छे स्कूल से पढ़ रहे हैं। भगवान करे आप आगे ज़िंदगी में खूब तरक्की करो और खूब देश का नाम रोशन करो। थैंक यू। Thanks a lot, sir. We are highly grateful for your presence here today. आपके दृष्टिकोण और विचार से हम सभी का मार्गदर्शन हुआ। आपके आशीर्वचनों का हम सदैव पालन करेंगे। आपका आभार। One who has mastered the art of learning, igniting enthusiasm among students as well as teachers on how to learn and continue their educational journey. To express our gratitude to all who have contributed to this inauguration, we are delighted to have the worthy Director of Education, Mr. Himanshu Gupta, sir, to grace us with a vote of thanks. Let us invite him upon the stage with a huge round of applause. मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का, जिनके नेतृत्व के अंदर 25% बजट राज्य का शिक्षा के लिए मिलता है, और उसके तहत इतने सुंदर सुंदर हमारे यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल में बन रहा है, और ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा आतिशी मैडम का, जो कंटिन्यूअस सुपरविजन और मॉनिटरिंग के चलते इतनी स्पीड में ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया और इतना सुंदर ऑडिटोरियम आज यहाँ पर आप सभी को मिला है। मैं समझता हूँ कि ऐसा ऑडिटोरियम दिल्ली के हार्डली किसी स्कूल के अंदर अवेलेबल होगा, तो आप सबको उसके लिए बहुत बहुत बधाई, और मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ मैडम का। मैं आभार व्यक्त करता हूँ एरिया MLA का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए और इस प्रोग्राम को इतना अच्छा बनाया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ सेक्रेटरी एजुकेशन अशोक कुमार सर का, जिनकी कंटिन्यूस सुपरविजन के तहत इतना अच्छा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना। मैं आभार व्यक्त करता हूँ DTT DC के इंजीनियर्स का, जिन्होंने दिन रात लग के यहाँ पर वेदर इलेक्ट्रिकल का काम हो या सिविल का काम हो, इतने अच्छे तरीके से किया कि ये एक ऑडिटोरियम अब ऐसा बन गया है जहाँ पर हर तरीके की एक्टिविटीज़ कराई जा सकती हैं, बच्चों को इंस्पिरेशनल मूवीज़ भी दिखाई जा सकती हैं, और हर तरीके के यहाँ पर प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं। मैं सभी अंत में आभार व्यक्त करना चाहूँगा एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों का, जिन्होंने दिन रात लग के, और एवं स्कूल के प्रिंसिपल का भी, कि जिन्होंने दिन रात लग के इस ऑडिटोरियम को इतना सुंदर ऑडिटोरियम बनाया, और इसका मुझे आशा है कि बहुत अच्छा सुंदर उपयोग आने वाले समय में होगा। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, sir, for your uplifting words that resonate deeply in our hearts. और अब मेरा आप सभी से अनुरोध है, कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। Bangla,
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य